So good morning. In today's video we will discuss some of the key concept of computer network. Initially the computer network was designed to achieve certain kind of uses. हम किसी भी चीज़ को तब बनाते हैं ना जब हमें जो चीज़ इस्तेमाल करनी है. तो एक्चुअली हम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते थे, हम रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते थे, हम कोलैबोरेटिव वर्क करना चाहते थे. ठीक है, एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो जो सारी चीज़ों को फैसिलिटेट कर पाए, सॉफ्टवेयर्स को मैनेज कर पाए, नेटवर्क को मैनेज कर पाए. नेटवर्क को मैनेज करने का सेंस कि अगर आपका कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है या कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, you can communicate with them at a certain time or on a certain day. So you can maintain that whenever you are communicating with them. Okay, and whatever you are sending, you also want the backup of data कि मैंने दिस पर्टिकुलर नेटवर्क को ये चीज़ें भेजी, इस पर्टिकुलर नेटवर्क को ये चीज़ें भेजी. आप अगर देखोगे आपसे क्या व्हाट्सएप जो आप यूज़ करते हो वो आपसे पूछता रहता है कि आपको डेटा का बैकअप लेना है या नहीं लेना है. ठीक है, 1 वीक का लेना है, 1 मंथ का लेना है. सो एवरी टाइम यू आर टेकिंग अ बैकअप. तो नेटवर्क जब इनिशियली डिज़ाइन किया गया था तो ये सारी चीज़ें पहले से ही माइंड में थी कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, डेटा का बैकअप भी चाहिए, तो हम क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी. So based on that we have basically designed the network. So these are the main uses. For sharing our information, that was a prior use of the network. We basically have 5 components. Sender और receiver तो हमें चाहिए ही चाहिए, जिनके बीच में हमें क्या करना है, मैसेज को to and fro भेजना है. There must be a medium. That medium can be a wired or wireless. There must be a message. That message can be a video, text, number, audio, anything. And we have certain protocols. Protocols are basically based on the medium through which you are transmitting and based on the messages whatever you are transmitting. हर एक चीज़ के लिए एक रूल नहीं लगता. ठीक है, so what we need 5 components: protocol, sender, receiver, medium, message. These are the 5 major components of sharing of information through network. Then we have a type of or the flow of data. जो भी आप भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसका फ्लो ऑफ डेटा क्या होगा. दैट फ्लो ऑफ डेटा इज ऑफ 3 टाइप. इट कैन बी अ सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. Simplex, you can send your data in a one direction only. You can't receive the data. Half duplex is at a time you can send and at a time either you can receive. So there is a one. ठीक है, एक काम एक बार में हो पाएगा. Full duplex, that simultaneously you are sending and receiving. That is a full duplex. एंड ऑब्वियसली बात है कि सिंप्लेक्स के लिए आपकी डेडिकेटेड लाइन है, हाफ डुप्लेक्स के लिए जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है पैकेट्स के. फुल डुप्लेक्स के लिए whatever route is given to you, whatever medium is given to you, that medium is applicable for all. आप पैकेट भेज भी सकते हो, आप रिसीव भी कर सकते हो. सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए, network is a set of devices or it is a combination of nodes via link. That link can be a wired and wireless. Okay, but while designing a network we have certain criteria that must be fulfilled. The performance of network always matters, whether the network is reliable or not, whether the network is secure or not. So these are the 3 main criteria for designing. And performance के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं. परफॉर्मेंस का एक पैरामीटर ये भी हो सकता है कि कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या कितनी स्पीड से डेटा का फ्लो हो रहा है, कितना थ्रूपुट है, कितना डिले है. दीज आर द सम अदर पैरामीटर्स विच कम्स अंडर द परफॉर्मेंस. ठीक है, देन वी हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क. देन वी हैव द डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स. Then we have the various kinds or categories of networks, and then we have the network of networks, that is the internetwork or the internet. So in the coming slides or in the coming time we will discuss all these points. Now come to the type of connections. Whenever the 2 nodes are communicating to each other, there certain kind of connection must be established. So that connection is basically either a point to point or a multi point. In point to point there is only 2 nodes, not more than that. Okay, so 2 nodes are connected via link. Again, that link can be a wired or wireless, but in a multi point the multiple nodes are connected with the each other. So that is a multi point.
Now, based on the connection and architecture of network, we have basically designed the categories of topologies. जैसे भी आप नोड्स को कनेक्ट करते हो किसी ना किसी तरीके से, तो आप नेटवर्क को नोड कनेक्ट डिज़ाइन करते हो. सो आइदर ये मैश नेटवर्क हो सकता है, स्टार नेटवर्क हो सकता है, बस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, रिंग. एंड देयर इज़ वन मोर दैट इज़ अ हाइब्रिड, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 or 3 और like this. So we called it as a topology, and the topology basically refers to the physical or logical arrangement of a network. Let us take the first one, that is a mesh topology. Mesh is also called a fully connected mesh network. All the nodes are connected with each other. In this diagram you see the 5 stations are there. They are connected via link, and we need almost 10 wires to connect all these. Now my question is, if I am adding one more station, then how many wires are required? If there is 6 nodes, if I am increasing the 2 nodes, then how many more wires are required? So the number of cables required in a mesh network is given by n into n minus 1 by 2. ठीक है, ये सबसे बढ़िया नेटवर्क है क्योंकि फुली इस्टेब्लिश कनेक्शन है. कोई भी एक अगर लिंक या नोड ख़राब होता है तो दूसरे नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. बट द प्रॉब्लम इज़ व्हेन वी हैव मोर नंबर ऑफ नोड्स वी नीड द मोर वायर्स, एंड व्हेन वी हैव मोर नंबर ऑफ नोड्स देन दिस इज़ वेरी मैशी. इसका नाम ही है मैश. तो ये इतनी मैशी हो जाएगी कि आप उसको मेंटेन करना, मेंटेनेंस कौन सी वायर में दिक्कत है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो वी यूजेस द हब. सपोज़ करो कि अगर मुझे 25 नोड्स भी कनेक्ट करने हैं तो मैश में कितनी वायर चाहिए होंगी? 25 ब्रैकेट में 25 माइनस 1/2. ठीक है, सो दीज नंबर ऑफ वायर्स आई रिक्वायर्ड. बट इन अ स्टार टोपोलॉजी, इफ आई एम कनेक्टिंग 25 नोड्स वाया हब, आई नीड ओनली 25 वायर्स, 25 stations and a one hub with the 25 ports. So that is a one solution. But what is the drawback? अगर हब ख़राब हो जाएगा so all the 25 nodes are not able to connect. But mesh में ऐसा नहीं था. ठीक है, हब के साथ एक और ड्रॉबैक है. हब is operate in a half duplex mode. At a time only a one can transmit. Hubs are basically available in the 4 to 24 port size. मिनिमम आप 4 स्टेशन तक कनेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 24 तक कनेक्ट कर सकते हो. इसमें अगर आपका कोलिजन होता है तो उसके लिए आपका होस्ट रिस्पॉन्सिबल होगा. कोलिजन इन द सेंस कि सपोज़ करो चारों स्टेशन ने एक साथ पैकेट भेज दिया तो हब पे वो सारे पैकेट जाके कोलाइड कर जाएंगे. ठीक है, हब कोई डिसीजन नहीं लेता. हब बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: एक्टिव हब, पैसिव हब एंड इंटेलिजेंट हब. बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वी बेसिकली यूज़. नंबर ऑफ लिंक्स कितनी चाहिए? n. 127 USB पोर्ट का भी हब आता है, so through which you can connect 127 nodes at a time. Then we have another topology, that is a bus topology. Through the bus topology you can connect multiple stations by a single backbone line with the end drop lines. ठीक, बट केबल का एंड पॉइंट होना चाहिए. अब नाउ माई क्वेश्चन इज, केबल का एंड पॉइंट क्यों रिक्वायर्ड है? वट एवर सिग्नल, वट एवर पैकेट इज ट्रांसमिटेड, इट इज़ कंटिन्यूसली moving and moving. There must be some end point so that your signal will get stopped. Alright, जितनी लंबी वायर होगी सिग्नल जैसे जैसे ट्रेवल करेगा सिग्नल विल बी एटोनेटेड, एंड आफ्टर दैट सिग्नल विल बी वीक, जो भी पैकेट ट्रांसमिटेड सिग्नल है. ठीक है, वी कैनॉट कनेक्ट मोर देन सर्टेन काइंड ऑफ नंबर्स. 100 अराउंड कुछ नंबर्स हैं. उससे ज़्यादा स्टेशंस अगर आप ऐड करना चाहते हो देन यू नीड रिपीटर्स, एंड देन यू नीड एडिशनल केबल, एंड देन ड्रॉप लाइन, एंड यू कैन कनेक्ट द नोड. सो अगर मैं अपनी बस को एक्सटेंड करना चाहती हूँ तो मैं रिपीटर्स लगाकर एक्सटेंड कर सकती हूँ. रिपीटर्स का क्या काम होता है? रिपीटर्स सिग्नल की स्ट्रेंथ को इन्हांस करता है, एंड थ्रू द ड्रॉप लाइन्स यू आर कनेक्टिंग द नोड्स. नंबर ऑफ केबल्स कितनी चाहिए? 1 बैकबोन एंड ड्रॉप लाइन. इफ यू वांट टू ऐड मोर स्टेशंस देन यू नीड रिपीटर ऑल्सो. ठीक है, देयर इज अ रिंग टोपोलॉजी which connect the 6 nodes, okay, and all these 6 nodes, the starting point is connected with the end point. ये एक तरीके से आपकी अगर देखा जाए तो बस टोपोलॉजी है. अगर आप बस के दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दोगे देन इट विल बिकम रिंग.
बट रिंग का ड्रॉबैक क्या है, अगर बीच में कोई भी एक पैकेट आपका स्टेशन या कोई भी एक रिपीटर आपका डैमेज हो जाता है तो पूरे सर्किट में कोई भी चीज़ ट्रांसमिट नहीं होगी, पूरा नेटवर्क आपका ब्रेक हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ केबल्स कितनी चाहिए रिंग टोपोलॉजी में, n-1। सो while डिज़ाइनिंग द नेटवर्क और while कंसीडरिंग और चूजिंग द टोपोलॉजी कि कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट होगी हमारे नेटवर्क के लिए, वी हैव सर्टेन क्राइटेरिया। these main consideration और the criterias are basically money always matter, कि हम कितने पैसे तक खर्च करेंगे। अगर हमारे 5 नोड हैं तो हम इतना कॉस्टली स्विच थोड़ी ना खरीदना चाहेंगे, ठीक है, तो हम सिर्फ केबल से ही काम चलाएंगे। लेंथ ऑफ द केबल नीडेड, अगर कितनी केबल लेंथ हमें चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ कितनी है, अगर हमें अपने नेटवर्क को बाद में कितना इंक्रीज़ करना है, केबल का टाइप क्या होगा। मोस्ट कॉमनली जो केबल हम यूज़ करते हैं वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। केबल का अपना एक अलग पूरा एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आपसे सारे केबल्स के बारे में डिस्कस करूंगी। तो जस्ट यहाँ पर अभी आप समझ लो कि जो मोस्ट कॉमन केबल है वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, ठीक है, जो हम स्टार टोपोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो कभी भी हम अगर टोपोलॉजी डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम इन 4 पैरामीटर्स को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि मनी कितनी खर्च हो रही है, लेंथ ऑफ द केबल कितनी रिक्वायर्ड है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है नेटवर्क की, और किस तरीके का केबल हम यूज़ करना चाहेंगे। Here is example of a hybrid topology. If you look at this diagram, this is a star topology, है ना? And with the star topology, the 3 buses are connected. A star backbone with a 3 bus network. So this is a combination of star and a bus network. This is an isolated LAN connecting 12 computers to a hub in a closed set. आप देखोगे कि हब में आपके कितने पॉइंट हैं, 4 4 12 देयर आर 12 पोर्ट्स एंड विद द 12 द स्टार्टिंग के 4 आपके कनेक्टेड हैं, फिर ये 4 कनेक्टेड हैं, फिर ये 4 कनेक्टेड हैं, एंड देन हब ऑटोमेटिकली आपका क्या है, क्लोज सेट है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। दिस लोकल एरिया नेटवर्क इज अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज़ यूज्ड विद इन द बिल्डिंग, प्लांट, कैंपस और बिटवीन द नियर बाय बिल्डिंग्स। So in this way you can create your local area network. Then जैसे जैसे हम अपनी टोपोलॉजी को इन्हेंस करते जा रहे हैं, आप देखोगे हम कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क पे आ गए। हमने क्या किया, अगर हमने ये हाइब्रिड नेटवर्क बनाया, दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ नेटवर्क, है ना। हाइब्रिड इज एक ही लोकल एरिया नेटवर्क बन गया है। आपने क्या किया, इतने नोड्स को आपस में हब से कनेक्ट कर दिया, सो इट इज़ अ ओपन, बट इट इज़ ओपन। And when it is the hub is closed, that it is a closed isolated, so we have created the local area network. Wide area network क्या कहता है, for wide area network you are connecting more number of nodes or more number of local area network. A WAN is a combination of LANs, ठीक है। A WAN is a communication system for a spanning states, countries, or it can be a whole world also. What we are doing, we are here connecting the switches of WANs, and system are connected with this network. This is a switched WAN. Below you see there is a point-to-point wide area network. One device is connected with modem. That modem is connected with the ISP, okay, ISP's modem. So there is a point-to-point communication between modem to modem. This is called point-to-point. This is a heterogeneous network made of 4 wide area network and 2 local area network. Look at this diagram. There is a one local area network through the bus topology. There is another local area network through the LAN topology. Now these 2 LANs are connected with the, this is a wide area network, एक रिंग टोपोलॉजी है स्विचेस की, ठीक है। आपके जो ये स्विच है, ये स्विच आपका राउटर से कनेक्टेड है, ये स्विच राउटर से कनेक्टेड है, ये स्विच राउटर से कनेक्ट कर लो, एक और नेटवर्क ऐड कर लो, एंड देन दीज राउटर्स आर कनेक्टिंग विद द लोकल एरिया नेटवर्क के राउटर। ये राउटर से राउटर के बीच में आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, ठीक। नाउ जो आपका स्विच्ड वैन है, स्विच्ड वैन आपका मॉडम से कनेक्टेड है। मॉडम आपका जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, प्रेसिडेंट है, उसके मॉडम से कनेक्टेड है, एंड ऑल दीज नोड्स आर नाउ कनेक्टेड विद ईच अदर।
Why this is heterogeneous? We have various kinds of nodes. When we have similar kinds of nodes, then it is a homogeneous network. LAN is a LAN somewhere it is a homogeneous, same nodes हैं, but हम यहाँ पर ड्रॉप लाइन्स यूज़ कर रहे हैं, हम हब यूज़ कर रहे हैं. So it is a heterogeneous network with a combination of wide area network and two local area network. Now the next is the internet. What we see, we have started with the simple node communication, then we have come to the type mode of communication, then we need to understand the topologies, and by enhancing the topologies we actually covered the LAN, MAN and WAN. And with the LAN, MAN and WAN, when one network is connected to another network, then network is connected to network, then it becomes the internet. So we have a beautiful history of internet, and nowadays what we are using is we are basically having a connection with the internet service provider and we connect with each other. So let us look a hierarchical organization of internet, how it works. The structure of national ISP is given in this above diagram A. There is ISPs or local ISP. They are connected with the router with the regional ISPs. Regional ISPs are connected with the routers with the national ISPs. Fine. And with the interconnection of national ISPs, these national ISPs are connected with the network access point. Okay? Network access point, they are basically similar kind of switches, but at the higher end. Okay? And through which the national ISPs are connected. So we can take the points. The internet is a collection of many separate networks. Here we use the TCP/IP protocol suite. क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे कोई भी आप चीज़ ट्रांसमिट करते हो, आप प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन करते जा रहे हो. जैसे जैसे आपकी लेयर बढ़ती जा रही है, so you need to design the protocol architecture. So internet basically uses the TCP/IP protocol structure. There are local, regional, national, international and ISP service providers. So we need accordingly rules and regulation. आप अपना ट्रैफिक सिस्टम को समझो. जब आपको लोकली ट्रैवल करना हो, व्हाट यू नीड. जब आपको विद इन द स्टेट टू स्टेट मूव करना हो, आप क्या करते हो? आप टोल टैक्स देते हो, ये चार्जेस देते हो, है ना. या अगर आपको लाइक वाया प्लेन मूव करना है या वाया वाटर और क्या नाम है लैंडलाइन और शिप से ट्रैवल करना है, देन यू आर पेइंग सम अदर काइंड ऑफ चार्जेस आर देयर. अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो, यू आर यूजिंग द वीज़ा एंड टेकिंग द, है ना, दीज काइंड ऑफ थिंग. सो पासपोर्ट, वीज़ा, सो यू हैव अ डिफरेंट रूल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस. आप एक जब भी इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक. सो अकॉर्डिंगली द सेम थिंग इज़ अप्लाइड हेयर ऑनली. सारी चीज़ें वही हैं, आप बस रिलेट कर पाओ उसको, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा. नो व्हाट दीज प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स आर, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स की. वी डिफाइन टू वाइडली यूज टर्म, प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स. प्रोटोकॉल्स क्या हैं? इट इज़ अ सिनोनिम्स ऑफ रूल्स. Let us discuss. It is basically a set of rules that governs the data communication or the flow of information. The protocol of or the key element of protocol is syntax, semantics and timing. Like अगर अभी मैं ये ऑनलाइन वीडियो ले रही हूँ, तो इसका हमारा सिंटेक्स क्या है? मैं एक वीडियो लेक्चर बना रही हूँ और इट हैज़ सर्टन सिमेंटिक्स दैट इट मस्ट बी विजिबल. इट इज़ नॉट अ पॉडकास्ट. सिर्फ मेरी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस के साथ आप टेक्स्ट भी देख रहे हो, ठीक है. एंड फॉर अ सर्टेन टाइम इट इज़ बीइंग एडेड और डाउनलोडेड और अपलोडेड और इट इज़ बीइंग मेंटेन्ड. सो फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग वी बेसिकली हैव थ्री मेन की एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स. वंस अगर ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल सेट हो जाती हैं, दैन इट बिकम स्टैंडर्ड. दैट यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए इट मस्ट हैव द व्यू, it must have the voice, plus it must have the proper timing पे पड़ा होगा. then it's a one example. So then it become the standard, and standard are needed to create and maintain an open and competitive market for manufacture. There are so many companies which gives you the कि मैं इस क्वालिटी का आपको नेटवर्क दे रहा हूँ, मैं इस क्वालिटी का.
लेकिन एक स्टैंडर्ड सेट है कि अगर आपको ये स्टैंडर्ड का नेटवर्क मिल रहा है ना तो ठीक है, ये आपका नेटवर्क का सर्विस प्रोवाइडर गुड सर्विस दे रहा है. सो स्टैंडर्ड हैज़ टू बी डिज़ाइन टू कोऑर्डिनेट प्रोटोकॉल रूल्स which can guarantee the capability of manufacturer. ठीक है. And there are certain organizations which basically define, and these organizations are ISO, ITUT, ANSI, IEEE, EIA. They are basically the organization which create the standard. और in another way we can understand कि अगर आप कोई चीज़ स्टैब्लिश करना चाहते हो, सपोज मुझे बीटेक करना है, वही एक एग्जाम्पल है. तो बीटेक के लिए हमारा यूजीसी के कुछ नॉर्म्स हैं कि भाई आपके इतने क्रेडिट होंगे, ये प्रोटोकॉल है उसका कि अगर आपके मिनिमम 240 क्रेडिट होंगे तो आप, और आपने 4 साल का कोर्स किया होगा तो हम आपको बीटेक की डिग्री दे देंगे. सो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड. अगर किसी ने उससे कम किया है या उससे कम ड्यूरेशन में की है तो आप देखोगे कई बार वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं होता कहीं पार्टिसिपेट करने के लिए. सो सर्टेन स्टैंडर्ड एंड देयर इज़ अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस विच बेसिकली डिफाइन द standards. Now there is a forums. Forums are a special interest of group that quickly evaluate and standardize the new technologies. अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, तो it must be approved and standardized by certain forums कि ये वाली सर्विसेज को एड ऑन प्रोवाइड करा रहा है. ठीक, कोई भी एडिशनल सर्विसेज आप इन्हांस करते हो अगर. Then for internet kind of services we have internet standards. RFC is a request for comment as an idea or a concept which gives you a prototype कि अगर इंटरनेट पे कोई चीज़ फ्लो करेगी तो उसको पूरा ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड है. सो दैट कम्स अंडर द RFCs. जिसको और डिटेल में रिसर्च ओरिएंटेशन में जाना है तो वो इनको स्टडी कर सकता है. यहाँ मैंने एक केस स्टडी ली है कि अगर मैं एक यूनिवर्सिटी के लिए नेटवर्क को इंस्टॉल करना चाहती हूँ तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे. आप देखो कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हो, फ़ायदे क्या क्या है. यूज़र एक्सेस कंट्रोल. स्टूडेंट्स आर द यूज़र्स, एम्प्लॉयज़ आर द यूज़र्स. वी कैन कंट्रोल द एक्सेस ऑफ ऑल ऑफ बोथ देम. देन इंफॉर्मेशन स्टोरिंग एंड शेयरिंग. Connections, we can provide the connections, various services like you can pay your fees, you are getting your classes, your syllabus, contact with the teachers, admission, exam, everything you are getting on the internet. Computing resources, flexible access and work group computing. So these all are the some of the advantages if we are installing a network within the university. It is a kind of local area network. What is the disadvantage? The disadvantage is it is expensive to install क्योंकि अगर हम किसी शॉर्ट बिल्डिंग के लिए कोई नेटवर्क इंस्टॉल करते हैं तो इट बिकम्स एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल. या एक जनरल एग्जांपल समझो कि अगर आप अपनी क्लासेस के लिए घर पे अपना पूरा लगा रहे हो राउटर स्विच, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है. ठीक है. और वहीं कहीं अगर आप अपने क्या कर रहे हो, आप अपने फ़ोन का ही डेटा यूज़ कर रहे हो तो बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है. एडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट ख़रीदने के या जो राउटर और उन सब का जो खर्चा है उससे आप बच जाओगे. सो इट इज़ एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम. अगर मैं यूनिवर्सिटी के लिए बना रही हूँ, मैं नेटवर्क इंस्टॉल करवा रही हूँ तो मुझे पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा उसके लिए. सर्वर अगर फेल हो जाएगा तो सारी जितनी भी एडवांटेजेस हैं सब फेल हैं. केबल अगर ब्रेक होता है तो मेंटेनेंस का काम बहुत ज़्यादा है. सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंसेस हमेशा इशू बना रहेगा. वी नीड टू इंस्टॉल द फायरवॉल्स व्हेन वी आर कनेक्टिंग विद द ISPs. ठीक है. इन बिटवीन द ISPs एंड इन बिटवीन द सर्वर ऑफ द यूनिवर्सिटी वी ऑल्सो वांट द फायरवॉल्स. काफ़ी कॉस्टली पड़ती है इंस्टॉल करना. सो दिस इज़ अ वन केस स्टडी विच आई हैव टेकन. Thank you.